Hey everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains. Welcome. इस वीडियो में we are going to start with a very interesting chapter. A chapter in which there is a man and who is lazy but who is a very good natured man, and then he sleeps. But when he wakes up, it's 20 years and suddenly everything is changed. Obviously, suppose today you sleep और कल जब आप सुबह उठे हो और अचानक से आपको लगे आप 20 years बाद उठ रहे हो तो क्या होगा? So this chapter has a lot of adventurous and mischievous things that we are going to learn very soon. So let's begin. So the name of this chapter is Rip Van Winkle and it has been adapted from the legend of Rip Van Winkle written by Washington Irving. So ये एक proper novel है, बहुत interesting novel है. So उसमें से एक छोटा सा part लिया गया. It has been adapted from that. So let's begin. Now before we start reading this chapter, we have something. This story is about Rip Van Winkle, a good-natured but lazy man. So ये story किसके बारे में है? एक आदमी के बारे में जिसका नाम क्या है? रिप वैन विंकल. वो बहुत अच्छा नेचर है उसका, लेकिन वो बहुत लेजी है. Who goes away into the hills and falls asleep. वो जो है वो पहाड़ों में जाता है, वहाँ जाके सो जाता है. When he awakens 20 years later, जब वो 20 साल बाद उठता है, Rip finds that quite a few things have changed. Obviously they will, right? 20 years बाद जब वो उठता है तो उसको क्या फील होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई हैं. Now let's begin reading this interesting chapter. Many years ago, at the foothills of the Catskill Mountains. So now, बहुत साल पहले at the foothills of. Foothills मतलब जैसे कि अगर ये कोई hill है तो यहाँ पे अगर कोई गांव बसा हुआ है तो हम उसे बोलेंगे at the foothills of. So, at the foothills of the Catskill Mountains was a little village. Catskill Mountains के foothills में एक छोटा सा गांव था. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. अब वहाँ पे एक आदमी रहता था, बड़ा ही अच्छा सा, काम, good-natured. उसका नाम क्या था? Rip Van Winkle. He was a kind neighbor, ready to help anyone. वो बहुत ही kind neighbor था, मतलब बहुत अच्छा पड़ोसी था, and he was always ready to help people. Everyone in the village liked him. अब जब कोई है जो आपकी मदद करता है, हमेशा बहुत अच्छे से बात करता है, तो आप उसको क्यों पसंद नहीं करोगे? तो सब उसे बहुत पसंद करते थे. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. So children used to love him because he used to play with them. वो उनको पतंग उड़ाना सिखाता था, कंचे खेलना सिखाता था और उनको बहुत अच्छी stories भी बताता था. The only problem with Rip was that he was very lazy. अब Rip के साथ एक ही problem थी कि वो भयंकर बड़ा वाला आलसी था. He did not work on his own farm. He did no work on his own farm and just idled away his time. वो उसका एक खुद का फार्म था, ठीक है, वो उसमें कोई काम नहीं करता था और दिन भर अपना टाइम वेस्ट ही करता था. आइडल्ड का मतलब क्या होता है? वेस्ट करना. His fences were falling to pieces. Fences मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो ये आपका घर है, सो इसके अराउंड आप जो हो एक फेंस लगवाते हो ताकि क्या है कोई भी आ ना जाए. तो उसका जो फार्म था उसके अराउंड का जो फेंस था वो पूरा इट वॉज फॉलिंग टू पीसेस, मतलब वो टूट रहा था, एकदम खराब हो गया था. हिज काउ वॉज गोइंग एस्ट्रे. उसकी जो काउ थी इट वॉज गोइंग एस्ट्रे. एस्ट्रे इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड. इसका मतलब क्या होता है? अवे फ्रॉम द करेक्ट पैथ और डायरेक्शन. मतलब उसकी जो काउज हैं जहाँ उन्हें रहना चाहिए वहाँ नहीं, वो कहीं भी इधर उधर चले जाती थी. Weeds grew on his farm. अब weeds मतलब क्या होता है? Unwanted plants. तो क्या होता है? जैसे अगर आप फार्म है उसमें अगर आप वीट ग्रो कर रहे हो, मेज ग्रो कर रहे हो, कुछ भी ग्रो कर रहे हो, तो क्या होता है? आपको पूरे टाइम उसको चेक करना पड़ता है कि कोई अनवांटेड प्लांट्स नहीं ग्रो होना चाहिए. जैसे आपके घर में भी गार्डन होगा, अगर रोज प्लांट है तो उसमें देखना कभी बिना मतलब के घास उग जाती है, कोई अजीब सा पेड़ उग जाता है, तो मम्मा क्या करती है? उसको निकाल के फेंक देती है, या जो आपके गार्डनर होते हैं वो उसको निकाल के फेंक देते हैं. उन्हें हम वीड्स कहते हैं. वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट. तो उसका जो पूरा फार्म था उसका फेंस पूरा खराब हो रहा था, काऊ कहीं कहीं जा रही थी और उसमें पूरे में वीड्स ग्रो हो रहे थे, मतलब अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो रहे थे.
Rip's constant companion was his dog named Wolf. अब उसका जो था एक constant companion मतलब उसका एक friend था जो हमेशा उसके साथ होता था, वो था उसका dog और उसका नाम क्या था? Wolf. To avoid work, he would walk away into the forest with his dog. उसको अब जैसे अपने फार्म में रहता था तो उसको लगता था यार ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, तो वो क्या करता था? सब छोड़ छाड़ के अपने डॉग के साथ फॉरेस्ट में चला जाता था. One day, Zip just walked on and reached the highest part of the mountains. एक दिन Zip जो था वो अपने डॉग के साथ वॉक करता गया और माउंटेन के सबसे ऊपर पार्ट पे पहुंच गया. It was late in the afternoon when he reached there. तो जब वो वहाँ पहुँचा था तो late afternoon मतलब maybe 2-3 बज रहे होंगे. Tired after his long climb, he lay down and began daydreaming. अब वो इतना थक गया था कि मस्त बैठा और सोचने लग गया. Daydreaming मतलब हम जो खुली आंखों से सपने देखने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि यार मैं ये करूँगा, मैं ना वो कर लूँगा, तो वो daydream करना स्टार्ट कर दिया. It was soon evening and he realized it would be night by the time he reached his village. अब क्या हुआ? Daydream करते evening हो गई. अब उसने सोचा अगर वो अभी वापस अपने village जाएगा तो रात हो जाएगी. Suddenly he heard a voice calling out, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. तभी उसको आवाज आई, कोई उसका नाम बुला रहा था, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. He looked around and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel. उसने क्या देखा? एक छोटा सा आदमी था, मतलब उसकी हाइट बहुत कम थी, एक शॉर्ट था, वो बहुत ओल्ड था, विथ थिक हेयर एंड अ ग्रिजल्ड बियर्ड. उसके काफ़ी सारे बाल थे, थिक थे, काफ़ी घने बाल थे, और ग्रिजल्ड का मतलब क्या होता है? ग्रे. मतलब उसकी जो पूरी दाढ़ी थी वो एकदम ग्रे हो गई थी, जैसे आप बहुत बूढ़े हो जाते तो सफ़ेद दाढ़ी हो जाती है ना, वैसी हो गई थी. एंड ही वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स हिम. तो वो छोटा सा आदमी जो था, बूढ़ा सा आदमी, वो उसके तरफ वॉक कर रहा था विद अ बैरल. बैरल क्या होता है? एक लकड़ी का, जैसे जिसमें आप लिक्विड रखते हो यूजुअली, तो वो इस तरीके का होता है. तो ये होता है आपका एक बैरल. तो ये जैसे यहाँ पे ये रहा, सो वो ये इस बैरल को लेके उसके पास आ रहा था. बैरल मतलब क्या होता है? एक सिलेंड्रिकल कंटेनर बल्जिंग आउट इन द मिडल, मतलब वो मिडल के साइड में बल्ज आउट करता है. ये रहा आपका बैरल. तो वो जो था एकदम बूढ़ा सा आदमी, उसकी सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी थी, उस बैरल को लेके उसके पास आ रहा था. ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल. अब वो इतना बूढ़ा था तो उसने क्या बोला कि उसने साइंस किए कि प्लीज़ मेरी मदद कर दो इसको उठाने में. तो अब रिप वैन विंकल तो बहुत अच्छा आदमी था, तो रिप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली. और रिप जो था उसने ना वो तुरंत गया उसके पास उसकी हेल्प करने के लिए. तो ये जो स्ट्रेंजर था उसने जोर से उसका हाथ पकड़ लिया. टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मेन प्लेइंग 9 पिन्स. अब वहाँ पे वो लोग एक जगह पहुंचे, वो बैरल को लेके एक जगह पहुंचे जहाँ पे उसके जैसे और भी छोटे छोटे लोग थे. एंड वो लोग सब साथ में मिलके क्या खेल रहे थे? 9 पिन्स. 9 पिन्स गेम क्या होता है? आप लोगों ने बॉलिंग देखा है, जिसमें अपन को एक बॉल फेंकना होता है और वहाँ पे 9 पिन्स होते हैं, उनको गिराना होता है. तो वो लोग एक्चुअली 9 पिन्स एक गेम है जिसको हम बॉलिंग किससे कंपेयर कर सकते हैं, वो लोग वो खेल रहे थे. They were all dressed the same way and all of them had beards of various shapes and colors. वो सब लोग जो थे वहाँ पे, सब उनकी हाइट कम थी, सबकी लॉन्ग बियर्ड थी और कलरफुल बियर्ड थी. किसी की वायलेट थी, किसी की पिंक थी, किसी की येलो थी, सबकी कलरफुल बियर्ड थी. Even though they were playing a game, their faces were serious and they were silent. वो सब लोग गेम खेल रहे थे. तो जब हम गेम खेलते हैं तो क्या होता है? कितनी मस्ती होती है, हम हंसते हैं, आवाज़ें आती है. वो लोग गेम खेल रहे थे लेकिन उन सबके फेस एकदम सीरियस थे and they were all silent. The only sound was the noise of the balls which echoed in the mountains like thunder. और जो सिर्फ आवाज़ जो आ रही थी वो बॉल्स की थी, जिन बॉल से वो 9 पिन्स खेल रहे थे, सिर्फ उन बॉल्स की आवाज़ आ रही थी. और अब वहाँ पे इतना ज़्यादा साइलेंस था कि इन बॉल्स की आवाज़ थंडर जैसे लग रही थी, बिजली जैसे लग रही थी. As Rip and his companion reached them, जैसे ही रिप और उसके साथ जो उसका जो डॉग था वो उनके पास तक पहुँचे, और वो जो एक और जो मैन था जिसने बैरल पकड़ाया था, वो लोग जब उसके पास पहुँचे, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. वो सब लोगों ने खेलना छोड़ दिया और वो लोग एकदम फिक्स्ड करके, मतलब उसको रिप को देखने लग गए, बिना अपनी पलकें झपकाए, बस सब लोग उसको देखने लग गए. रिप वॉज रियली फ्राइटेंड. रिप बहुत ज़्यादा डर गया था. फ्राइटेंड मतलब ही वॉज रियली स्केर्ड.
His companion emptied the contents of the barrel into glasses and made Rip drink it. अब वो जो था, जो एक और जो छोटा सबसे पहले जो उसे बंदा मिला था जिसने उसको हेल्प मांगी थी कि भाई मेरे साथ ये बैरल कैरी करके चलो, जैसे ही वो वहाँ पहुँच गया तो क्या हुआ, बैरल में जो लिक्विड था उसने उसे ग्लासेस में पोर किया और सबको पीने के लिए दे दिया और उसने रिप को पीने के लिए दिया. रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर. अब रिप को नहीं पता था इसमें क्या है, उसे पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, लेकिन उसने उसकी बात मान ली क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था. ट्रेम्बलिंग मतलब ही वॉज शिवरिंग विथ फियर. Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. अब क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा thirsty था, थक गया था वो, तो उसने क्या किया, 2-3 ग्लास और पी लिया और उसके बाद उसको बहुत ज़ोर से नींद आई और वो सो गया. On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. जब वो सो के उठा तो उसने क्या रियलाइज किया, जहाँ वो ओल्ड मैन से सबसे पहली बार मिला था, जहाँ वो डे ड्रीम कर रहा था, जहाँ वो अपने डॉग के साथ था, वहाँ पे वो एग्जैक्टली वापस उसी प्लेस पे आ गया था. He rubbed his eyes, तो उसने अपनी आंखें रब करी. It was a bright sunny morning, तो मस्त बहुत अच्छी सी सुबह थी. Surely I have not slept here all night, thought Rip. तो उसने बोला, अरे बाप रे, क्या मैं रात भर यहीं सो गया, हो सकता है मैं, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है. He looked around for wolf, but he was nowhere. अब वो हर जगह wolf को ढूंढने लग गया कि जो उसका कंपेनियन था, उसका जो डॉग था, वो हर जगह wolf को ढूंढने लगा, लेकिन उसे wolf कहीं नहीं मिला. Rip whistled for him. Wolf, wolf, he then shouted. तो पहले तो उसने जैसे उसको वो यूजुअली बुलाता था सीटी मार के, तो उसने वैसे बुलाया, कहीं कोई आवाज़ नहीं आई wolf की, तो उसने फिर उसका नाम बुलाया, wolf, wolf. There was nothing. No dog was to be seen. कहीं भी wolf के कोई जो है अते पते नहीं थे. Where has this dog gone? उसने क्या सोचा, उसने अपने आप से बोला. He muttered to himself. Muttered मतलब अपने ही आप से जो हम धीरे से बात करते हैं कि अरे मेरा डॉग कहाँ गया. He began to descend the mountain to go back to his village. अब वो mountain descent मतलब नीचे की तरफ उतरना. अब उसने mountain पे उतरना चालू किया ताकि वो अपने village वापस जा पाए. As he neared the village, he met a number of people, but he did not know any of them. अब जब वो सुबह कल मतलब जब वो माउंटेन गया था, उसको पूरा विलेज जानता था, सब उसे जानते थे, सब उसे लाइक करते थे, एंड ही न्यू एवरीवन. अब वो इतने सारे लोगों से मिल रहा था लेकिन वो किसी को जानता ही नहीं था. द विलेजर्स ऑल्सो स्टेयर्ड एट हिम इक्वली सरप्राइज. लोग भी उसकी तरफ एकदम सरप्राइज होके देख रहे थे. हु इज दिस मैन, said one. I have never seen him before, said another. एक ने बोला, अरे ये आदमी कौन है, रिप वैन विंकल को देख के. एक ने बोला, पता नहीं, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ इसे. Look at his long white beard and his wrinkled face. तब एक ने कहा कि अरे इसकी दाढ़ी तो देखो और इसका फेस कितना wrinkled है. On hearing this, Rip stroked his chin and to his astonishment he found his beard had grown a foot long. तो जैसे जिप ने उन लोगों ने बोला कि अरे बाप रे इसकी दाढ़ी तो देखो कितनी बड़ी है, तो जिप ने अपनी चिन को टच किया तो एक्चुअली ही फेल्ट कि ओ माय गॉड देयर वाज अ फुट लॉन्ग बियर्ड एंड उसका फेस एकदम रिंकल्ड हो गया था. एंड ही हैड ग्रोन अप एंड इट वाज ऑल वाइट, और उसकी जो बियर्ड थी वो पूरी वाइट कलर की थी. An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. एक बहुत old woman थी, वो धीरे से उसके पास आई और उसने उसका चेहरा देखा थोड़ी देर के लिए. Then she exclaimed, "It is Rip Van Winkle." तभी उसने बोला, ओ ये तो Rip Van Winkle है. Welcome home again, old neighbor. Where have you been these 20 years long? तो उसने क्या बोला, अरे welcome back neighbor, तुम 20 साल से कहाँ थे. एंड देन Rip Van Winkle realized that वो तो कल रात को सोया था, आज सुबह उठा था, बट इट हैज़ बीन 20 years. वो 20 years से सो रहा था. उसको उन लोगों ने क्या पिलाया, उस बैरल में क्या था उसे नहीं पता, बट ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर द लास्ट 20 years. एंड सडनली नाउ जस्ट इमेजिन दैट टुडे you are 11 years, 12 years, right, and you're sleeping, or 10 years, 9 years, and you're sleeping, and next morning when you woke up you're already 45 or you're already 40 years old. How would you feel? ऐसा लगेगा ये क्या हुआ, कल तक तो मैं बच्चा था, ये क्या हुआ. And there are a few students जिनको लगेगा wow that would be interesting, but no, this is amazingly difficult.
So this was a very short story, Rapwinbinkle. I hope you found it interesting. I hope you liked it. Now we are going to start with the question answers. NCERT solutions बहुत important है, तो अब हम देख लेते हैं. हमने पूरा चैप्टर समझ लिया है, स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, वुल्फ के बारे में, वो कैसा था. तो अभी हमने लास्ट जो हमारी पोम थी वो भी लेज़ी लोगों के बारे में थी, ये भी एक लेज़ी आदमी के बारे में थी, लेकिन जो उसके साथ हुआ दैट वाज मिस्टीरियस. कैन यू गेस उसके साथ क्या हुआ होगा? 20 ईयर्स. आप कोई भी ड्रिंक पी के 20 ईयर्स के लिए सो सकते हो? इसका भी एक क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी सोल्यूशन में, जहां आपको इमेजिन करना है कि उसके साथ क्या हुआ होगा. चलो लेट्स बिगिन आवर क्वेश्चंस. सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स. तो अब आपको यहाँ पे ये सारे वर्ड्स दिए, जैसे आइडल्ड अवे, तो आइडल्ड अवे का राइट मीनिंग क्या होगा, इनमें से आपको सर्कल करना है. तो हम डायरेक्ट आंसर्स में जाते हैं. आइडल्ड अवे का मतलब होता है वेस्टेड, मतलब वो अपना पूरा टाइम वेस्ट करता था, तो ही इज टू आइडल अवे हिज टाइम. कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? स्टडी, मतलब कंटिन्यूसली कोई चीज अगर हो रही है. कंपेनियन का मतलब होता है पार्टनर, कंपेनियन मीन्स पार्टनर. रियलाइज का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड. डिसेंट का मतलब होता है माउंटेन से डिसेंड करना, मतलब नीचे की तरफ आना, टू मूव डाउन. देन वी हैव बैरल. बैरल क्या होता है? इट्स अ वुडन कंटेनर जो कि बीच में से बल्जी होता है. कंटेंट्स मतलब क्या होता है? द इंग्रेडिएंट्स. कंटेंट ऑफ द बैरल मतलब बैरल के अंदर जो लिक्विड था, सो उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स थे. नाउ वी हैव गॉट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द वर्ड्स इन द बॉक्स विद देयर मीनिंग्स. ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे ये वर्ड्स दिए हैं, इनके मीनिंग से तुम्हें इसको मैच करना है. तो ये तुम्हें यहाँ पे जैसे फर्स्ट है ग्रिजल्ड. ग्रिजल्ड बियर्ड, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था. ग्रिजल्ड बियर्ड मतलब क्या होता है? ग्रे हेयर वाली बियर्ड. ठीक है, तो हम राइट आंसर्स में जाते हैं. ग्रिजल्ड बाद में दिया हुआ है. ओके, तो हम यहीं पे देख लेते हैं. ग्रिजल्ड आप लोग इसमें अपनी बुक में मार्क कर सकते हो विथ ग्रे हेयर. ओके, एक्सक्यूज मी. नेक्स्ट वन इज स्ट्रोक्ड. स्ट्रोक्ड मतलब टच करना. ठीक है, तो स्ट्रोक्ड का क्या हो जाएगा यहाँ पे? टू रब जेंटली. रब जेंटली क्या हो जाएगा? स्ट्रोक्ड. और ये क्या हो जाएगा? ग्रिजल्ड. उसके बाद है टू बी वेरी सरप्राइज्ड. नियर द लोअर पार्ट ऑफ अ माउंटेन. नियर द लोअर पार्ट ऑफ द माउंटेन क्या हो जाएगा? फुट हिल्स. सो यहाँ हमारे पास आंसर नियर द लोअर पार्ट इज फुट हिल्स, विथ ग्रे हेयर हो जाएगा ग्रिजल्ड. टू रब जेंटली मतलब होता है स्ट्रोक्ड. टू बी वेरी सरप्राइज्ड इज एस्टोनिश्ड. एंड नोन टू यू मतलब होता है familiar. familiar मतलब जो चीज आप जानते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. Say whether the following sentences are true and false. ये सबसे इजी होता है, सबसे इजी क्वेश्चन. Rip was kind to children, yes or no? Yes. Rip was a hard-working man. No. The short man on the mountain was his constant companion. No. उसका constant companion कौन था? Wolf था. उसके बाद next question is, Rip helped the old man on the mountains because he wanted to have a drink from the barrel. No. उसने क्यों हेल्प किया था? बिकॉज वो काइंड हार्टेड था. Rip was away for 20 years because he was asleep on the mountains. Yes. The drink from the barrel made him fall asleep for 20 years. Yes. Nobody recognized Rip when he came back because he had reached the wrong village. कोई ने उसे नहीं पहचाना क्योंकि वो गलत विलेज पहुंच गया था. नो, किसी ने उसे नहीं पहचाना क्योंकि वो 20 years बाद आ रहा था. सो दीज आर आवर आंसर्स. आप क्विकली अपनी बुक में इसको लिख सकते हो एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. या नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. रिप्स विलेज वाज सिचुएटेड. कहाँ पे था? एट द फुट हिल्स ऑफ विच at the foothills of Catskill mountain. At the foothills of the Catskill mountain. The children of the village loved him because he played with them. वो उनके साथ खेलता था, इसलिए children they used to love him. The dog named Wolf was his constant companion. उसका constant companion कौन था उसका partner? The dog जिसका नाम था Wolf. The villagers stared at him because no one knew him.
सारे लोग उसको इसलिए देख रहे थे क्योंकि कोई उसे जानता नहीं था. नो वन न्यू हिम. द ओल्ड वुमन हु रिकॉग्नाइज्ड Zip was his old neighbor. उसने बोला था ना, हे ओल्ड नेबर हाउ आर यू, तो वो क्या थी उसकी ओल्ड नेबर थी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम. वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4. What were the strange things about the men on the mountains? अब वहाँ जो आपने जो माउंटेन में जो छोटे छोटे लोग थे उनके बारे में स्ट्रेंज चीज़ क्या थी? पहली चीज़, उन सब की जो बियर्ड थी वो बहुत कलरफुल थी, उन सब की हाइट कम थी, वो लोग गेम खेल रहे थे बट दे वर ऑल सीरियस एंड साइलेंट. तो अब हम देख लेते हैं. दे वर ऑल ड्रेस्ड इन द सेम वे. उन सब ने एक ही जैसे कपड़े पहने हुए थे. They had beards of various shapes and colors. उन सब की जो beard थी वो अलग अलग शेप की थी और अलग अलग कलर्स की थी. They were serious even while playing games. जब वो लोग गेम्स खेल रहे थे तब भी वो सीरियस थे. They were very short heighted. और सब के सब बहुत छोटी हाइट के थे. तो ये 4 पॉइंट्स जो हैं ये हम लिख सकते हैं about the men who were there in the mountains. Now what kind of a man was Rip Van Winkle? तो अब ही वॉज अ काइंड नेबर, ये तो हमें पता है. दूसरी चीज़ क्या है, वो बहुत फ्रेंडली था. ही यूज टू टेल किड्स यू नो स्टोरीज, ही यूज टू प्ले विद देम. और क्या था, वो लेजी भी था, राइट. तो अब हम ये पॉइंट्स लिख लेंगे. फर्स्ट, ही वॉज वेरी लेजी. पहला पॉइंट, ही वॉज वेरी लेजी. सेकेंड पॉइंट, ही लाइक टू प्ले विद चिल्ड्रन. वो जो था चिल्ड्रन के साथ खेलना उसको अच्छा लगता था. थर्ड, ही वॉज अ गुड नेचर्ड फेलो, मतलब वो एक अच्छा आदमी था, उसका नेचर बहुत अच्छा था. सो ये 3 पॉइंट्स हो गए. हम रिप वैन विंकल के बारे में लिख सकते हैं. अगर हमने चैप्टर रीड किया है तो ये जो क्वेश्चंस है ना, इसमें तो किसी की हेल्प चाहिए ही नहीं. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द नेम्स ऑफ द गेम्स मेंशन्ड इन द स्टोरी. अब हमारे पास यहाँ पे इतने सारे गेम्स के नाम हैं. हमें स्टोरी में कौन कौन से गेम्स मेंशन हुए हैं? एक तो है फ्लाइंग काइट्स, ठीक है, यस, ओके. चेस हुआ है, नो. 9 पिन्स, यस. शूटिंग मार्बल्स, यस. माउंटेन क्लाइंबिंग, यस. शूटिंग, नो. स्किपिंग, नो. हॉपिंग, नो. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फ्लाइंग काइट्स, शूटिंग मार्बल्स एंड 9 पिन्स. अब माउंटेन क्लाइंबिंग जो है वो भी आप लिख सकते हो, ही हैड क्लाइम्ड इट, सो यू कैन राइट इट. नेक्स्ट है, समटाइम्स वी जॉइन 2 वर्ड्स टू मेक अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, रिप वॉज अ गुड नेचर्ड मैन. मतलब कभी कभी हम 2 वर्ड्स को ऐड कर देते हैं ताकि हम किसी भी चीज़ को प्रॉपरली डिस्क्राइब कर पाएँ. जैसे गुड नेचर्ड में गुड है और नेचर है, ये 2 वर्ड्स को हमने जब कंबाइन किया तो इससे क्या पता चला, उसका नेचर अच्छा है. Here are some more describing words. Use them to complete the given paragraph. अब जैसे ये है लॉन्ग स्लीव्ड. लॉन्ग स्लीव्ड मतलब जिसकी स्लीव्स लॉन्ग हो. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज वेयरिंग अ शर्ट विथ और इट वॉज लॉन्ग स्लीव्ड, मतलब उसकी स्लीव्स एकदम फुल हैंड्स थी. हाई हील्ड. हाई हील्ड मतलब जिसने हाई हील्स पहनी हुई हो. वेल ड्रेस्ड, जिसने अच्छे से ड्रेसअप किया हो. ओपन माउथ्ड, मतलब ओपन माउथ का मतलब क्या होता है कि एक तो इसमें ये हो सकता है कि उसका माउथ ओपन था, दूसरा जो ज़्यादा बोलता है. स्वीट लुकिंग, जो कि स्वीट दिख रहा हो. ऑड लुकिंग, जो बहुत ही ऑड दिख रहा हो. पार्ट टाइम मतलब जो आपका मतलब कांस्टेंट काम नहीं है, जो आपका मतलब जैसे पार्ट टाइम जॉब क्या होता है, पार्ट टाइम कोई भी काम क्या होता है कि आपका मेन काम कुछ और है और आप जब आपके पास थोड़ा स्पेयर टाइम होता है उसमें आप कोई और भी काम कर रहे हो तो उसको आप पार्ट टाइम बोलते हो. अब हमारे पास यहाँ पे ये सारे सेंटेंसेस हैं जिनमें हमें ये सारे वर्ड्स फिल करने हैं. मिसेस दास हैज़ अ जॉब इन अ क्लोथ शॉप. कैसा जॉब है उनके पास? तो यहाँ पे आ जाएगा पार्ट टाइम. उनका जॉब कैसा है? पार्ट टाइम जॉब है उनका. अब है yesterday and dash woman walked into the shop. She was wearing high heeled shoes. अब yesterday कैसी woman आई थी उनके शॉप में? So odd looking, sweet looking, ठीक है. तो हम यहाँ पे इधर पे चले जाते हैं, ठीक है. So Mrs. Das has a part-time job. एक old looking woman आई थी उनके इसमें. She was wearing high heeled shoes. A sweet looking dog was with her.
तो उनके साथ एक स्वीट लुकिंग डॉग भी था. आई वॉन्ट अ लॉन्ग स्लीव शर्ट फॉर माई डॉग. उन्होंने क्या बोला, मुझे मेरे डॉग के लिए एक लॉन्ग स्लीव शर्ट चाहिए. शी सेड फॉर योर डॉग. आज मिसेस दास ओपन माउथ इन सरप्राइज. की है ओपन माउथ मतलब जब आप एक्सक्लेम करने लग जाते हो, आपको अपने डॉग के लिए शर्ट चाहिए. यस, रिप्लाइड द वुमन. आई वॉन्ट हिम टू बी वेल ड्रेस्ड फॉर माई नेक्स्ट पार्टी. तो मैं चाहती हूँ जब मेरी नेक्स्ट पार्टी है उसमें मेरा जो डॉग है वो वेल ड्रेस्ड रहे. इस तरीके से हम ये जो दो वर्ड्स होते हैं जब हम उनको साथ में यूज़ करते हैं तो उनका मीनिंग डिस्क्राइब, मतलब वो अच्छे से आपको कोई भी चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एज वेल. अब हम बात करते हैं साइलेंट लेटर्स की. जैसे मैंने बोला ऑनेस्ट. ऑनेस्ट की स्पेलिंग होती है HONEST, लेकिन इसमें H जो होता है वो होता है साइलेंट. साइकोलॉजी. साइकोलॉजी की स्पेलिंग होती है P से स्टार्ट होती है लेकिन उसमें P साइलेंट होता है. नाइफ. नाइफ की स्पेलिंग होती है KNIFE लेकिन उसमें K साइलेंट होता है. तो हमें ये साइलेंट वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सो दैट वी कैन राइट द राइट स्पेलिंग. अब जैसे है यहाँ पे नी, नाइफ, नॉट, नो. अब इन सब में कौन सा वर्ड है जो साइलेंट है? सो वी हैव के. इन सब में के साइलेंट है. नेबर, डॉटर, फाइट, स्ट्रेट. अब फाइट में आपका GH साइलेंट है. स्ट्रेट GH साइलेंट है. डॉटर यहाँ सब जगह आपका GH साइलेंट है. ऑनेस्ट H साइलेंट. ऑनर H साइलेंट. आर H साइलेंट. एयर H साइलेंट. Now these are the silent letters. अब हमें यहाँ पे हमने बता दिया यहाँ पे कौन कौन से साइलेंट है. Try and make more silent words. अब जैसे है यहाँ पे nat, ठीक है, तो इसमें और साइलेंट वर्ड कैसे बन सकते हैं जो G से स्टार्ट होते हैं. तो यहाँ पे हो सकता है nash and now. अब है टंग. टंग में हमें साउंड सिर्फ इसका आता है UE साइलेंट होता है तो हम उसमें ही सिमिलरली वेग बना सकते हैं और मॉर्ग बना सकते हैं. चौक में L साइलेंट होता है तो हम टॉक बना सकते हैं एंड वॉक बना सकते हैं. विसल में T साइलेंट होता है तो वैसे ही बसल होता है एंड यहाँ दो बार बसल लिख दिया, हम हसल लिख सकते हैं. इट इज HUSTLE, हसल. So आपके पास ये words हैं. If you know other words, you can please write them and that would be wonderful. So here we are done with the silent words. अब आते हैं हम vocabulary building में. Read the 2 paragraphs given below. हमारे पास 2 paragraphs दिए हुए हैं नीचे जो हमें पढ़ने हैं तो हम फटाफट पढ़ लेते हैं. My mother is always awake before anyone else in the family. Awake का मतलब क्या होता है? She is up, मतलब she is awake, मतलब वो सबसे पहले उठ जाती हैं. Instead of using the word awake, अगर हमको बहुत ही basic language use करना होता तो हम बोलते हैं my mother is always up और she gets up before anyone in the family. So अब हमें हमारी vocabulary अगर enrich करनी है, enhance करनी है, so we have to use better words. Awake means to get up. I usually wake up after 6 o'clock. तो ये दोनों का एक ही मतलब है. I loll around lazily for a few minutes. ये loll word हमने कहाँ पे पढ़ा था? हमारे lazy frog में पढ़ा था. loll मतलब just lie around lazily. ठीक है, lazily मतलब you know in a lazy way. Then I get up and get dressed for school. फिर मैं I get up मतलब फिर मैं उठता हूँ. At bedtime I read a story book. When I feel tired, I lie down and to sleep very quickly. I fall asleep in no time at all. तो उसके बाद क्या होता है, जब मैं बेड टाइम होता है मतलब जब रात में सोने का टाइम होता है तो मैं मतलब वहाँ मैं थोड़ा सा लेटता हूँ और उसके बहुत जल्दी नींद लग जाती है मुझको और मैं बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए सो जाता हूँ. Now find the opposites of the following words from the paragraphs and complete the table. अब इसमें हमें जितने भी जैसे awake का opposite क्या होगा? Asleep. Wake up का अब इसमें wake up का क्या होगा? Wake up. तो हो जाएगा इसका go to sleep. So get up का मतलब क्या opposite क्या हो जाएगा? Lie down. Lazily, quickly. So ये हमको ये सारे words जो हैं paragraph में दिए हुए हैं.
अवेक का उल्टा हो जाएगा asleep, wake up का हो जाएगा go to sleep, get up का हो जाएगा lie down and lazily का हो जाएगा opposite quickly. ठीक है? Now we have got another question. Fill in the blanks using the words in the previous question. अब आपके पास जितने भी words थे lazily, get up, quickly, ये सारे words के साथ हमको इन blanks को fill up करना है. Dash and dash quickly. So इसका क्या हो जाएगा? Get up and get ready. So you will be late for school. So wake up and get up quickly. हमने use कर लिया wake up and get up quickly मतलब उठो और जल्दी से खड़े हो जाओ. The baby is asleep. Don't make a sound or she will wake up. अच्छा यहाँ पे हम सब जगह क्या कर रहे हैं? हम अपने antonyms use कर रहे हैं. Wake up and get up quickly. The baby is asleep. It will wake up. Don't make a noise, otherwise वो उठ जाएगी. Are you still awake? क्या तुम अभी भी जगे हुए हो? You should be asleep by now. अगर तुम awake हो तो ये गलत बात है. Suppose it's right 11 o'clock in the night. So are you still awake? You should be asleep. Or you will not be able to get up in the morning. Otherwise तुम सुबह उठ नहीं पाओगे. Get up in the morning. Next paragraph जो हमें दिया हुआ है, lots of things must have happened in the village when Zip was away. अब बहुत सारी चीज़ें यार, he was away for 20 years. 20 years में तो बहुत कुछ होता है, तो बहुत कुछ हुआ होगा उन 20 years में. Imagine you are the neighbor who greets Zip after 20 years. अब जब Zip वापस आता है माउंटेन से तो उसको एक नेबर मिलती है ना, एक बहुत ही बूढ़ी सी औरत, और वो बोलती है ओह हाय नेबर, वेयर वर यू फॉर द लास्ट 20 years. तो अब सोचो कि तुम वो नेबर हो. One student should act as Zip. Tell Zip about all that had happened in the village after he left. अब आपको क्या बताना है? जैसे मान लो आप वो नेबर हो, अब आप Zip से बात कर रहे हो and you have to tell about everything that has happened in the last 20 years. Now talk about what happened to his family. पहले आप किसके बारे में बात करोगे? उसकी फैमिली के बारे में. To his friends, और जो बाकी के villagers थे उनके जो to the children he played with, उन बच्चों का क्या हुआ. The changes in the village, village में क्या changes हुए, and your teacher will guide you. You may start this way. Guess what happened on the day you left. अब आपको ऐसे start करना है, आपको पूरी story बतानी है. Guess what happened on the day you left. जिस दिन तुम mountain पे चले गए थे उस दिन क्या हुआ. जैसे अब वो रात में वापस नहीं आया. When you didn't come home in the evening, your wife, अब उसकी एक फैमिली थी. तो क्या है, हमको अपने मन से अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके एक कहानी बनानी है. ठीक है, तो अब हम इसको इस तरीके से देखते हैं. I don't, जैसे कि है I don't usually walk to school, I often go by cycle. यहाँ पे क्या किया है? अब यहाँ पे when you didn't come home in the evening, your wife. अब यहाँ पे ये जो आंसर है ये आपको खुद लिखना है. ठीक है, हम पहले इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं. इसमें अरे your wife she cried a lot and then after some time she married someone else and your parents they were very much worried about you. After some time they died. Your dog was like suddenly it disappeared. It never came back. तो आप अपनी हिसाब से इस कहानी को बना सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये जो स्पीच बबल्स दिए हुए हमको, ये वाले जो स्पीच बबल्स हैं, हमें इन्हें रीड करना है एंड इनको हमें ऑर्डर में देना है. मतलब पहला क्या दिया हुआ है? आई डोंट यूजुअली वॉक टू स्कूल, आई ऑफन गो बाय साइकिल. आई नेवर वॉक टू स्कूल, आई लिव फार अवे. तो ये अनु बोल रही है, ये जॉन है. आई ऑलवेज वॉक टू स्कूल, आई लिव राइट ऑपोजिट द स्कूल. I sometimes walk to school, at times I take the bus also. ये मिनी है, ये अर्जुन है और नजीम क्या बोल रहा है? I usually walk to school. It's a nice way to start the day. अब अगर तुम यहाँ पे देखोगे इन सब ने I don't usually, वो मतलब वो कभी मतलब स्कूल जो है वॉक करते हुए नहीं जाती, वो साइकिल से जाती है. जॉन जो है वो कभी नहीं जाता है. जो अर्जुन है वो हमेशा जाता है. मिनी कभी कभी जाती है. नजीम यूजुअली जाता है. तो यहाँ पे क्या है, अब आपको इनको सेट करना है. तो अब हमने कैसे सेट किया? पहले हम ऑलवेज से लेके ऑलवेज से स्टार्ट करेंगे. तो अर्जुन आ गया कि आई ऑलवेज वॉक टू स्कूल. तो ऑलवेज, फिर कभी कभी, फिर एकदम कम, फिर तो हमें उस ऑर्डर में से सेट करना है. आई ऑलवेज वॉक टू स्कूल, आई लिव राइट ऑपोजिट टू स्कूल. ये हमारा ऑलवेज आ गया. ऑलवेज के बाद क्या आएगा? यूजुअली.
I usually walk to school. It's a nice way to start the day. Usually के बाद क्या आता है? Sometimes. I sometimes walk to school. At times I take the bus also. Sometimes के बाद क्या आता है? एकदम कम. Don't usually walk to school. और last क्या आ जाएगा? Never walk to school. Last क्या आ जाएगा? Never walk to school. That's it. अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में. राइट अबाउट योरसेल्फ यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. डू यू प्ले इन द पार्क, गो टू बेड लेट, फस ओवर फूड, स्टडी हार्ड, एक्सेट्रा. अब आपके पास ये जो वर्ड्स हैं बेसिकली दीज आर योर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि हम ग्रामर पार्ट में पढ़ेंगे. ये सारे आपके एडवर्ब्स हैं. तो जैसे आप तुम क्या बता सकते हो कि आई ऑलवेज गेट अप अर्ली, I frequently go to temple, or I usually complete my homework before time. I often play cricket. I sometimes fuss over food, or I rarely sleep, or I really get up late or anything. Rarely का मतलब क्या होता है? बिल्कुल जो कभी होता ही नहीं है. और rarely मतलब बहुत ही कम होता है. Usually मतलब जो हमेशा होता रहता है. फ्रीक्वेंटली मतलब आप बार बार जो काम करते हो. समटाइम्स मतलब कभी कभी. ऑफन मतलब, ऑफन का मतलब भी होता है कभी कभी. अब यहाँ पे हैं आपके एग्जाम्पल्स. जैसे यू कैन यूज आई ऑलवेज गो टू बेड ऑन टाइम, आई रियली बीट एनीवन, मतलब मैं बिल्कुल बहुत ही कम किसी को मारता हूँ. आई ऑफन मिस माई स्कूल बस, मैं कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है जब मैं अपनी स्कूल बस को मिस कर देता हूँ. आई फ्रीक्वेंटली कॉल माई मदर, मतलब बार बार मैं मम्मा मम्मा बुलाता रहता हूँ. आई यूजुअली फिनिश माई होमवर्क ऑन टाइम. अब ये ना सेंटेंसेस आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो. राइट. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूज द फॉलोइंग क्लूज टू कंप्लीट द फॉलोइंग एक्सरसाइज. अब आपके पास यहाँ बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं और ये एक्सरसाइज दी है. राइट 3 न्यू थिंग्स यू हैव डन इन द लास्ट 3 years. लास्ट 3 years मतलब अभी आप 5th स्टैंडर्ड में हो, तो सेकेंड में जब थे तब से लेके अभी तक आपने क्या नई चीज़ें करी है. आई हैव स्टार्टेड, तो यू हैव स्टार्टेड टू प्ले, और यू हैव स्टार्टेड टू लर्न, और यू हैव स्टार्टेड टू ट्रैवल, और यू हैव विजिटेड. तो तुमने क्या किया है तुम वो पूरा लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, आप अपने आंसर्स प्लीज खुद लिखिएगा. लाइक आई हैव स्टार्टेड लर्निंग जर्मन. Suppose you have started learning Sanskrit, or you have started learning harmonium, or you have started to learn guitar. तो वो आप अपने आंसर्स खुद लिखना. I have visited Shimla, or you can say I have visited Singapore, I have visited Dubai, whatever. I have started reading books. I have started to cook. I have started to play badminton. I have started to play tennis, whatever. ठीक है? So अब क्या है? Write 3 things you have not done in the last 3 years. अब लास्ट 3 years में क्या नहीं किया है? आई हैव नॉट प्लेड गोल्फ. अब इसमें तो यार कुछ भी हो सकता है. आई हैव नॉट प्लेड दिस, आई हैव नॉट डन एक्टिंग, आई हैव नॉट मेट शाहरुख खान, आई हैव नॉट मेट दीपिका पादुकोण. यू कैन राइट एनीथिंग. आई हैव नॉट ईटन चिकन, आई हैव नॉट मेट शाहरुख खान. ठीक है? So guys, here we are finally done with the NCERT solutions of this chapter. The questions were also a lot of fun. I hope you liked them. Anyways, कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना and I will clear them for you. I'm going to see you soon in my next video with a new unit जिसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सी पोएम के साथ we are going to start it. So take care and stay connected.